Should I start? Hi, ma'am. It's live. You can start your session, ma'am. Okay. Hello, everyone. Good evening. I'm Dr. Garima, and today I'm going to tell you about some important facts regarding nutrition. So, my first point is how to judge your own nutritional status. कि आप अपना खुद का nutritional status कैसे assess कर सकते हैं? How to assess? Like nutritionally, you are fit or not? Means you need not to go to anywhere like any dietitian, any doctor. You can judge yourself. The first point is that you should know your ideal body weight. How to assess your ideal body weight? It's a very simple formula. Like you need to know your height in centimeter and you need to minus 100 and whatever is the result, that is your ideal body weight. For example, my height is 157 centimeter and I'll minus 100. Then the result will be 57. That means 57 is my ideal body weight. So it's very easy to calculate your ideal body weight on your own. You need not to go anywhere else. Okay. So this is the simplest way. There are so many methods to calculate your ideal body weight, but this is a very simple way. And in so many hospitals, this method is used. Okay. Then my second point. My second point is what is your medical profile? You have to assess your medical profile like your biochemical parameters. In your biochemical parameters, the first thing is your thyroid profile. You should go for your thyroid profile. Second is your lipid profile. You should go for your lipid profile, your cholesterol level, and then your liver function test, your kidney function test. These are some important factors regarding your biochemical parameters. And the main factor, that is vitamin D levels as well as B12 levels, because vitamin D is very much deficient in your body nowadays, and B12 is again it is not present in your normal diet, and same in the case with vitamin D. So we focus on these nutrients while going through your assessment. Okay. So these are the two factors to assess your own nutritional status. Apart from that, there's so many things to assess yourself, like your height, like your waist hip ratio. So many things are there, but these are the very simplest methods to assess are you nutritionally fit or not. Okay. Then what are the main things you need to think about yourself into your diet, right? The first thing is your carbs. My point is carbs are of so many types. What are good carbs and what are bad carbs? So how to think that what are good carbs and what are bad carbs? There's a difference between both of them. Like all the cereals, they are rich in carbohydrates. So everybody knows that fiber rich diet and whole cereals, they are good carbs, but there are some important facts. What type of fiber you are taking, what type of cereal you are taking. Like rice, it is not rich in fiber, and wheat, that is rich in fiber. So you have to select what type of cereal you have to take. Okay. Then my point is for carbohydrates, they are oligosaccharides, they are fructosaccharides, there are some other things also. Some are digestible, some are non-digestible. So always choose whole cereals because fiber is there and fiber gives you immunity. Your immunity increases through fiber. How your immunity increases, this is the main thing, because fiber is also a prebiotic. Now, what are prebiotics? Prebiotics are the product, they are the food of good bacteria. Nowadays, you're knowing that good bacteria are very important for your immunity. But if you're not providing any food to your gut, then they will not grow. So go for prebiotic food so that your gut bacteria will grow and your immunity will increase it. So this is the main point I want to tell you that to, to select the carbohydrates, go for whole carbohydrates. All the carbohydrates are good, all the cereals are good. Only bad thing,
bad carbohydrates, they are maida products and other refined products. They are the bad carbohydrates because they are not having any fiber in itself. Okay, so these are the carbohydrates you need to select for yourself. And one important factor, your immunity lies in your intestine. That is very true because so many bacteria, good bacteria are there in your intestine, and they need some food that is prebiotic. Prebiotics are the fiber products. Soluble fiber is prebiotic. Okay. Now probiotics. Probiotics are the products. They are the good bacteria like yogurt, curd, and some fermented products. They are the probiotic products. So you should go for probiotic products. And the important fact about fermented products, that is they are rich in vitamin K2, right? And vitamin K is also good for your bones. That is very unique thing you're knowing now. That Hi, ma'am. yeah, Sorry for the interruption. yeah, Can you please speak in Hindi? okay, yeah, Thank sure. you. So I'm talking about the good bacteria in your intestine. So one important thing is if you take the food like banana, अगर आप banana choose करते हो तो उसमें बहुत सारा soluble fiber होता है. Soluble fiber is very much important for the increment of your good bacteria. तो वो आप चूज करो. ये बहुत बड़ा मिथ है कि बनाना आपकी जो वेट को इंक्रीज कर देगा. ऐसा नहीं होता यूजुअली कि बनाना आपके वेट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि बनाना में फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते. और जो प्रोडक्ट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो एनर्जी कैसे देगा. तो इट इज नॉट सो मच रिच इन एनर्जी. सो 1 or 2 banana in a day, it's very much normal for you, will not increase your weight. But if you take bananas like in the form of shakes and sugar will be there, तो उससे आपका वेट इंक्रीज हो सकता है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में बनाना को ले रहे हो, राइट. एंड द सेकंड थिंग इज बैड कार्ब्स में मैं बात करूंगी, दैट इज शुगर. इट इज ऑल्सो रिफाइंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर प्रोसेस्ड फूड होता है जो कि शुगर केन जूस से बनता है. तो अगेन इट इज प्रोसेस्ड. वॉट एवर प्रोसेस्ड फूड इज देयर, दैट इज वेरी मच बैड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं. एंड यू कैन यूज ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर में भी सेम कैलोरीज होती हैं जितनी व्हाइट शुगर में होती हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको कम कैलोरीज देता है, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सो मेनी मिनरल्स इन ब्राउन शुगर. सो यू शुड गो फॉर ब्राउन शुगर. Okay, so in carbohydrates we should go opt mainly whole cereals, right, and fruits are the rich sources of carbohydrates. And now I'll talk about fat. What are good fats and what are bad fats? Usually we think that fat is very much bad for our health, but actually it is not. फैट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर सो मेनी फैट सॉल्युबल विटामिन जो अगर हम फैट अपनी डाइट में लेते हैं तभी वो एब्जॉर्ब होते हैं. अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे. विटामिन ए, डी एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होंगे. लाइक अगर हमारी डाइट में फैट बिल्कुल एब्सेंट है तो ये विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे और हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे. तो वी शुड टेक सम फैट इन अ डाइट, दैट इज एसेंशियल. Okay, so the point is what is good fat and what is bad fat. अगर मैं बात करूं गुड फैट की, मैक्सिमम फैट इज अ गुड फैट एंड वेरी लेस फैट दैट इज अ बैड फैट. अगर आप किसी भी ऑयल को ओवरहीट करते हैं यू और रीयूज करते हैं तो उस फैट के अंदर बहुत सारे peroxides बन जाते हैं और peroxides are carcinogenic for your health. So you should avoid reheating of oil and reuse that reheated oil. Okay, so वो आप avoid करें. Then the second part is whatever hydrogenated fat we are taking, like जो bakery products होते हैं उन सब में artificial fat added होती है, that is a bad fat. So we should avoid bakery products. उनके अंदर जो फैट होती है उसमें trans fats होते हैं, so you should not go for that. Then the all fats are good. Apart from that, ghee is very good for your health because it has vitamin A.
विटामिन ए की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो सिर्फ घी में ही पाई जाती है, अदरवाइज वो अपनी दूसरी फॉर्म में पाया जाता है जो कि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो उसकी रिटेनेबल फॉर्म होती है, जो वो हीट के साथ रिटेन हो पाता है, हाँ, वो सिर्फ घी में ही प्रेजेंट होता है। तो इट इज वेरी गुड इफ यू आर टेकिंग प्योर घी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर घी, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग हाइड्रोजनेटेड घी, दैट इज अगेन अ बैड फैक्ट, राइट? तो अगर आप घर में घी बनाते हैं और आपको पता है कि दिस इज द प्योर घी, so that go for that. Then I want to tell you about some essential fatty acids जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाती है। फैट कुछ ऐसी भी होती है जो हमारी बॉडी में नहीं फॉर्म होती है, एंड दैट फैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कई टाइप्स की होती है, लाइक EPA, DHA and ALA. So DHA is present in fish oil and EPA is present in flaxseed oils, walnuts, उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यू शुड गो फॉर दैट। चिया सीड्स में होते हैं, एंड तो दीज आर एसेंशियल फैट्स, गो फॉर दैट। एसेंशियल फैट हमें लेनी चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि वो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो सकती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट, दे इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिससे हमारी इम्यूनिटी इनहेंस होती है। ओके, सो essential fatty acid is again a very important fact about fat. Then I will talk about cholesterol. Cholesterol. Nowadays, everybody thinks that cholesterol is very bad for our health. We should not take cholesterol in a diet. But the fact is, it is very much important for our health. Our body makes 1 gram of cholesterol per day. Okay, why? Because some important hormones, some steroid hormones that are made by cholesterol. Vitamin D is steroid. Vitamin D is a steroid hormone also उसको बोलते हैं. Vitamin D is also a steroid. तो वो भी उसी से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से, एंड कोलेस्ट्रॉल फैट का ट्रांसपोर्ट करता है, एज वेल एज जो फैट होती है उसको डाइजेस्ट करता है। दैट्स वाई हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को बनाती है, एंड 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल। पर अगर हमारी बॉडी 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा बनाएगी, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। दैट इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है, यू आर गेनिंग वेट और यू आर इंक्रीजिंग फैट परसेंटेज इन योर बॉडी, तभी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है उसको फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, सो अवॉइड टेकिंग सो मच ऑफ फैट इन योर डाइट। देयर शुड बी द प्रॉपर अमाउंट, दैट इज 20 grams per day. That is the fat requirement of a normal person. 20 grams per day. उससे ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। 4 teaspoon fat is sufficient for you a day. और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी गुड फैट्स इंक्लूड करनी है। घी शुड बी देयर, ऑलिव ऑयल शुड बी देयर, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज रिच इन विटामिन ई, तो ऑलिव ऑयल भी उसमें होना चाहिए। एंड प्लीज मॉनिटर योर ऑयल इन योर वेजिटेबल। आप अपनी वेजिटेबल जो भी कुक करते हैं घर में, जो भी आप खा रहे हो, उसका ऑयल आपका मॉनिटर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू सबसे ज्यादा फैट आपकी बॉडी में जा रही होती है। तो व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस प्रोग्राम, तो आप सबसे पहले अपनी वेजिटेबल फैट को मॉनिटर करेंगे और वो आप अवॉइड करेंगे। बॉइल्ड वेजिटेबल कुछ आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डाइट को, पर वो सबसे पहले आपको मॉनिटर करना चाहिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फैट्स, दैट इज you should go for normal oil, don't go for refined oil. Refined oils, they are very much harmful for your body because nutrients सारे refining में निकल जाते हैं। और oils में क्या होता है कि they are rich in antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट सारे जितना भी आप रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो खत्म हो जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑयल्स के अंदर विटामिन ई होता है, दैट इज अगेन हाईली ऑक्सीडाइजेबल। विटामिन ई भी उसका खत्म हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा ऑयल को रीहीट कर, ऑयल को रिफाइंड ऑयल होता है तो। जैसे मस्टर्ड ऑयल हम घर में यूज करते हैं, दैट इज वेरी गुड। कोकोनट ऑयल इज गुड, कोकोनट ऑयल भी बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। देन सेसमे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं। And if I talk about ghee, so ghee is again very good for your health, but you should take 1 or 2 teaspoon ghee per day in a pure form. Then these are all about fat. Now कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट फूड में प्रेजेंट नहीं होता कोलेस्ट्रॉल।
तो जो मार्केट में हम ऑयल्स देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है 0 कोलेस्ट्रॉल, किसी भी आप उसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो किसी भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वही कोलेस्ट्रॉल होगा। तो लेकिन जो हम डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल हम डाइट से लेते हैं वो हमारी बॉडी में इतना नहीं जाता जितना कि हमारी बॉडी उसको बनाती है कोलेस्ट्रॉल को। सो we have two types of cholesterol, like one is low density lipoprotein, that is a bad cholesterol, and the second one is high density lipoprotein, that is a good cholesterol. So if your body is slim or you are on a weight loss diet or you are losing weight in that condition, then your HDL, high density lipoprotein, will increase, good cholesterol आपका बढ़ता है। और अगर आप weight gaining condition में होते हैं और आपका weight gain हो रहा होता है तो usually आपका bad cholesterol बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मेल्स होते हैं दे हैव मोर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग ऑफ इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है मेल्स की बॉडी में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके पीछे ये फैक्ट है कि फीमेल्स आर हैविंग दैट ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है टिल आर मीनोपॉज तक वो एकदम कंट्रोल रहता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन आफ्टर मीनोपॉज फीमेल्स में भी कोलेस्ट्रॉल को गेन करने की टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो आफ्टर मीनोपॉज बहुत ज्यादा वेट का ध्यान रखना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सब लोग सोचते हैं कि प्लीज अवॉइड ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो भी आप नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं सब अवॉइड कर दो, घी बिल्कुल छोड़ दो, मिल्क बिल्कुल क्विट करा देते हैं डॉक्टर्स यूजुअली। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बस यूजुअली करना क्या है, सिर्फ आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है और अपना वेट लूज करना है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन, बिकॉज इफ यू टेक कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन तो उससे क्या होगा आपको, दैट इज अगेन कार्सिनोजेनिक इन नेचर, वो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देगी। ठीक है, सो डोंट गो फॉर दैट पार्ट कि आप कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन लेते हैं, राइट। सो if you have any queries regarding carbohydrates and cholesterol, so please you can ask to me. Anybody else? अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हाँ जी, प्लीज रिपीट। नहीं मैम, मैं सबसे सारी सुपर मॉम से बोल रही हूँ, अगर कुछ किसी के क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हैं तो हम ले सकते हैं। मैम ड्राई फ्रूट्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए डेली? अ फुल फिस्ट, आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स इजीली एक दिन में ले सकते हैं। तो इससे हम इजीली ये जज करते हैं कि एक मुट्ठी मतलब आप ड्राई फ्रूट्स लें, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, आप एक ही ड्राई फ्रूट मत लीजिए, आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स यूज करें। दे आर अबाउट 25 grams or 30 grams in total ड्राई फ्रूट्स। ओके, करुणा मैम आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ मैम है। हाँ जी मैम बताइए। हेलो मैम, ये हम जो मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं मोस्टली हम इसको क्या करते हैं, फुल बॉईल कर, मतलब इसको पूरा गर्म कर लेते हैं। कि गर्म करने के बाद हम इसको, क्योंकि उसकी जो महक होती है उसको हम करते हैं ना अवॉइड की महक चली जाए उसकी, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं, तो वो उसमें क्या मतलब वो ठीक रहता है कि नहीं रहता? वो ठीक नहीं रहता, अगर आप उससे ज्यादा हीट करते हो इट इज नॉट एट ऑल गुड। बट उसमें एक टेंजरिन जो स्मेल होती है, टेंजरिन स्मेल की वजह से उसको हीट करना होता है, तो उसको ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तभी आप उसमें आप जो अपने मसाले हैं वो ऐड कर दें। तो जैसे कई लोग नहीं ज्यादातर कई लोग, हाँ ओवर, और कई लोग कहते हैं ऑल हेल्दी। अच्छा ऑल हेल्दी, हाँ गरम करके स्टोर कर देते हैं कि हमें रोज ना गरम करना। कार्सिनोजेनिक, वो बहुत कार्सिनोजेनिक होता है इन फ्यूचर, दैट इज कैंसर कॉजिंग। हम लोग सोचते हैं कि सो मेनी केमिकल्स आर कैंसर कॉजिंग, जो हम बाहर से खा रहे हैं, हम घर में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स फैट के थ्रू। फीमेल्स जो घर में होती हैं, स्पेशली वो ऑयल जो बचा होता है किसी भी फ्राइंग से जो बचता है ना ऑयल, हाँ जैसे पकोड़े तले, जैसे हमने पकोड़े तले लेते हैं, हाँ तो उसको फिर रीयूज कर लेते हैं, तो दैट इज वेरी मच अनहेल्दी फॉर यू। मतलब सरसों का तेल भी नहीं यूज करना चाहिए। और देसी घी, देसी घी के अंदर क्वालिटी होती है, हीट होने पर भी देसी घी के अंदर पेरोक्साइड्स नहीं बनते। जो देसी घी होता है उसकी ये क्वालिटी है कि अगर उसे हीट करते हैं तो उसमें पेरोक्साइड मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स नहीं बनते।
तो Okay. वो दैट इज वेरी गुड फॉर कुकिंग। देसी घी बहुत अच्छा नहीं, होता है जैसे cooking के लिए। जैसे मैम मैं क्या होता है, मैं तो देसी घी में ही तलती हूँ ज्यादातर। अच्छा, तो फ्राई उसके भी बाद करते हो? हाँ, फ्राई भी देसी घी में करती हूँ। तो वो देसी घी जो फ्राई करती हूँ तो बच जाता है, तो उसको भी मैं यूज कर सकती हूँ ना। देसी घी को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप 2-3 बार मत करिए, एक हाँ, या 2 बार करके बस फिर आप उसको यूज मत करिए। अच्छा। देसी घी इज बेटर क्योंकि उसके थोड़ा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से उसकी जो रिटेनेबिलिटी है वो अच्छी है। ओके। और जो ये ड्राई फ्रूट्स हम जैसे आप बोल रहे हो कि एक मुट्ठी, तो हमें भिगो के खाना चाहिए ना ऐसे वैसे? उसमें नहीं, दैट डिपेंड्स। अगर आप उनको ड्राई फॉर्म में भी ले रहे हैं, भिगो नहीं रहे हैं, तब भी वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि भिगाने से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है ड्राई फ्रूट्स की। ओके। डाइजेस्टिबल प्रॉब्लम जिसको है उसको भिगा के खानी चाहिए। अदरवाइज जैसे जो एजिड पीपल हैं उनके लिए भिगा के ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज हम लोग तो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं बिना भिगाए, अच्छा, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो भिगाने से वाटर में चले जाते हैं जिसमें हम भिगाते हैं, हाँ हाँ। इजीली वो नहीं, रीच पर जैसे हो कहते हैं ना, गरम होते हैं, गर्मियों में नहीं तासीर खाने की बात चाहिए। कर रहे हो आप? हाँ, हाँ, तासीर दैट उसकी गर्म डिपेंड्स कि होती अगर है ना। आपको सूट कर रहे हैं तो आप खा लो। वो ओके। आयुर्वेदा में बोलते हैं तासीर के लिए कि वो ठंड, उसको भिगाने से उनकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है। बट हम्म। न्यूट्रिशन में हम उसको मिथ समझते हैं, ओके ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डाइजेस्टिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है भिगाने से, जल्दी ओके। डाइजेस्ट। थैंक यू मैम। मैम अ, एक क्वेश्चन। हाँ जी, एक रंजना मैम का क्वेश्चन है। तो ये पूछ रही है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर बॉडी वेट? बॉडी वेट, या आइडियल बॉडी वेट ना, बॉडी कैसे वेट, कैलकुलेट यस। कर सकते हो? ओके, उसके लिए आपको अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए। आपको पता, जैसे आपकी 5 फीट है, ठीक है, तो 5 फीट में 150 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट? और 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट इन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, और -100 आप उसमें करेंगे, -100 height in centimeter -100, like if 157 centimeter will be there, then 57 will be the ideal body weight. तो जो भी आपकी हाइट होगी, बहुत इजीली अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू मैम। सुनीता मैम, आपका कुछ क्वेश्चन था? यस मैम, स्लिप हो गया, नो प्रॉब्लम याद मैम, आया। नो प्रॉब्लम मैम। यस मैम, डॉक्टर गरिमा, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में आई वांट टू टेल यू दैट सम पीपल थिंक दैट एनिमल प्रोटीन इज गुड एज कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन हो, आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऐसा भी है, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके फिजिकल वर्कआउट के साथ डिपेंड करती है। अदरवाइज नॉर्मली जो भी आपका आइडियल बॉडी वेट होता है वही आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर आइडियल बॉडी वेट इज 57, देन योर नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 57 ग्राम्स अ डे। एक दिन में आपको 57 ग्राम्स प्रोटीन लेना है। जितना भी आपका आइडियल बॉडी वेट होता है वही आपका प्रोटीन का ग्राम्स में होता है रिक्वायरमेंट पर डे की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वो इंक्रीज होता जाता है, उसका अलग फॉर्मूला होता है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो जो वेजिटेरियन है और जिनकी डाइट में सिर्फ सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ये मेन सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, ऐसा नहीं है कि वो डेफिशिएंट हो जाते हैं प्रोटीन में। बस हमें जो मेनली वेजिटेरियन पीपल है उनको करना क्या है, उनको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन लेना होता है। जैसे सीरियल्स और पल्सेस को कंबाइन करके लेना, दाल राइस कॉम्बिनेशन, वड़ा, जैसे हम कॉम्बिनेशन जिसमें कर देते हैं सीरियल्स और पल्सेस का, बिकॉज सीरियल्स में कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो एब्सेंट हैं, पल्सेस में भी कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो एब्सेंट है, और जब वो दोनों कंबाइन होती है तभी एक प्रोटीन बनता है, कंप्लीट प्रोटीन बनता है। ओके, सो गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस टू मेक योर प्रोटीन हेल्दी, right? And milk is a very good source of protein. Eggs, milk, fish, meat, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन के अंदर आते हैं। एंड जो सीरियल्स हैं वो लो क्वालिटी प्रोटीन में है, बट अगर आप सीरियल्स को पल्सेस के साथ कंबाइन कर देंगे तो वो भी गुड क्वालिटी प्रोटीन बन जाता है। पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता
एंड आप जो इसके लिए बेस्ट है कि आप जब भी अपना आटा घर में जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी पल्सेस का मिक्सचर ऐड कर, पल्सेस का मिक्सचर ऐड करने से उसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो इनहेंस हो जाती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेशली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस एंड सीरियल्स इन योर आटा, स्पेशली कि आटे के अंदर आप थोड़ा सा चने का आटा ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो, और जैसे सपोज उसी वक्त आटा बना रहे हैं तो तभी आप उसमें बेसन थोड़ा सत्तू ऐड कर देंगे तो उससे बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी एनहांस होती है। एंड सत्तू इज वेरी मच डाइजेस्टिबल, इट हैज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो कि आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांच चेन BCAA जो कि बहुत जिम जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको स्पेशली वो सप्लीमेंट लेते हैं इन अमाइनो एसिड्स का, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का, क्योंकि उससे उनकी जो मसल बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, एनहांस होती है, राइट। और प्रोटीन के साथ ये है कि प्रोटीन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इट डिपेंड्स, यूजुअली नहीं लेने चाहिए। अगर इफ यू आर ऑन हैवी वर्कआउट, बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं एंड यू हैव टू मेक योर मसल्स, मतलब आपको अपनी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्डअप करना है, तो आपको प्रोटीन की सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। अदरवाइज यू नीड नॉट टू गो फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स इफ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्कआउट, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर वर्कआउट सेशन। प्रोटीन्स में आपको कुछ भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क टू। प्रोटीन्स के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो कि कैसे ये हमारी बॉडी में मतलब इम्पोर्टेंट है और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। डोंट यू नो कि प्रोटीन्स आर वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इफ वी टेक सो मच ऑफ प्रोटीन व्हाट विल हैपन, हमारी बोन्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं बिकॉज प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट, एंड एक्सेस ऑफ एसिडिटी दैट मेक्स आवर बोन्स वेरी मच यू नो पोरस, हमारी बोन्स पोरस हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन आप बिना फिजिकल एक्टिविटी के कभी नहीं लेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आए हुए हैं कि जो स्पेशली जिम में वर्कआउट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं बिना किसी की गाइडेंस की। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उनकी बोन्स में बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, बोन्स पोरस हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है। So don't go take so much of proteins in your diet if you're not doing any physical activity, right? And तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रोटीन से रिलेटेड या कोई किसी कुछ भी डाइट से रिलेटेड किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? any vitamin you want to know about? I'm Chandana. I just want to know about the keto diet. I have heard that it is very, very beneficial if you are going for a weight loss. Exactly. Keto diet is a diet which is very much rich in fats, right? Keto word comes from fat. Fat से ये word आता है, ketogenic diet. Okay? क्योंकि keto chain से मिलके फैट बनी होती है और फैट्स के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। फैट्स के बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हम एक्सेस में अगर लेते हैं और वर्कआउट नहीं करते तब। और अगर आप फैट को कीटो डाइट में क्या होता है कि आपका फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, देन सेकंड नंबर पे आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन दिया जाता है उसमें, और थर्ड नंबर पे आपका कार्ब्स होता है, राइट। तो कीटो डाइट के अंदर आपको वर्कआउट एसेंशियल है, दैट इज मस्ट इन कीटो डाइट, क्योंकि आप कीटो डाइट कर रहे हैं और वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, प्रोटीन एक्सेस हो जाएगा आपकी बॉडी में प्रोटीन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो कीटो डाइट आप तभी करें प्रॉपर गाइडेंस में। एक अच्छी डाइटिशियन ही आपको एक अच्छी कीटो डाइट दे सकती है, तो गो फॉर अ गुड डाइटिशियन फॉर कीटो डाइट, राइट। सो इट इज हेल्दी। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है ड्यूरिंग माई फैकल्टी पीरियड, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इवन, बट वर्कआउट इज मस्ट। अच्छा, मैं एक चाहती हूँ, जैसे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट, एक्सेस फैट जो आप बाहर से आउटसाइड से लाइक घी इस टाइप का फैट आप कुछ अगर नहीं लेते हो तो बॉडी आपकी खुद ही एक फैट बनाती है जो बहुत हार्मफुल होती है। What is the idea behind this? I just confused. That's a very good question. Actually, हमारी बॉडी में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारी बॉडी में सिर्फ फैट्स की एनर्जी नहीं देती, कार्ब्स भी देता है, प्रोटीन भी देता है और फैट्स तो देता ही है, राइट। सो इफ यू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड नॉट टेकिंग सो मच ऑफ फैट, that will again you will become fatty, because जो भी आपका एक्स्ट्रा कार्ब्स होगा वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा
और जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, जबकि आप फैट नहीं ले रहे होते हो डाइट में। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, इवन क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जो फैट इतना कम लेते हैं, स्टिल दे आर सो फैटी, बहुत फैटी होते हैं, बिकॉज वो कार्ब्स बहुत ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है उनकी डाइट में, प्रोटीन अच्छा होता है उनकी डाइट में, और फैट्स कम ले रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं हम फैट लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, घी बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे इससे, और उससे फिर भी वो मोटे होते हैं। द रीजन इज दैट कि ऑल द कार्ब्स जो भी वो ले रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इसलिए जिम में मुझे सजेशन दिया गया है कि आप फैट लेकर आए, मतलब आप 1 चम्मच घी लेकर हमेशा इनटेक के साथ आप आए, ताकि आपका जो बॉडी फैट जो होगा वो एक्यूमुलेट करके उसे बना नहीं पाए और उसको कंट्रोल करके रखे। एग्जैक्टली, फैट आपका लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, लाइक 4 to 5 टीस्पून पर डे, मींस 20-25 ग्राम्स अ डे, ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है फैट की। वर्किंग आउट देन ओनली, वर्कआउट कर रहे हो तभी? नहीं, वर्कआउट नहीं कर रहे तब मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल है। आप अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे तब भी आपको 4 चम्मच फैट, 4 से 5 चम्मच फैट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वर्कआउट कर रहे हो तो फिर दैट मीन्स कि आप फिर तो आपका फैट स्टोर ही नहीं होगा जल्दी से, अगर आपका नॉर्मल वर्कआउट है तो। और अगर आप स्पेशली वेट गेन, वेट लॉस वर्कआउट पे हैं, कुछ लोग बहुत ओबीज होते हैं ना, बहुत ओबीज होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, वो अगर वर्कआउट पे गए हैं तो उनको तो स्पेशली अपना फैट बहुत कम करना पड़ेगा डाइट में, सिर्फ 2 to 4 टीस्पून अ डे, दैट्स इट। ये बहुत कम फैट मैंने आपको बताया है। अगर मैं यूजुअली आपकी डाइट कैलकुलेट करूं कि आप मुझे बताएं कि आप क्या क्या खाते हैं, मैं उसका फैट कैलकुलेट करूं तो बहुत ज्यादा आएगा। इट विल बी अराउंड 40 to 50 grams a day. Yeah, actually, my Definitely. body age is, around 65. Yeah, Though it I am can only be. 45. But तो अगर body आप अपना फैट कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा फैट ले रहे हो। actually. Thank you, Dr. Garima. Anybody else? कविता मैम से एक क्वेश्चन है। हम्म। कविता मैम, you can ask your question. I want to know that what is the best fast and efficient way to lose weight? Fast and efficient. Okay. So ये मुझे भी जानना है। could be a combination, right? Yes, of course. 80% will be your diet and 20% will be your exercise, right? तो आपको डाइट का तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज, ओनली 15 to 20 minutes, right? 15 to 20 minutes of walk will do wonders for you. And सिर्फ 15 से 20 मिनट भी अगर वॉक करते हैं, दैट वुड बी ब्रिस्क वॉक, वो सिर्फ ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए और उसमें कोई टॉक नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टॉक, लाइक हम लोग 2 या 3 आपस में फ्रेंड्स अगर वॉक कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग, तो वो वॉकिंग हमें हेल्प नहीं करेगी। अगर हम अकेले जाके वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एनहेंस होता है और बहुत सारे हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। वो तभी होते हैं जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हमारी वॉक पे होती है। So go for 15 to 20 minutes of brisk walk and reduce your or maintain your carbs, protein and fats. वो आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। आपको अपना कार्ब्स मेंटेन करना होगा, फैट मेंटेन, फैट सिर्फ 4 टीस्पून अ डे। जो सब्जी में आप फैट ले रहे हो सबसे पहले वो कम करो, वो कितना जा रहा है वो आपको पता भी नहीं होगा कि आप कितना ले रहे हो, क्योंकि पता नहीं आप कुक कर रहे हैं, कौन कुक कर रहे हैं, मदर्स कुक करते हैं, कभी कुक भी कुक करते हैं, तो यू नेवर नो कि कितना आपका ऑयल जा रहा है आपकी बॉडी में, वहीं से सबसे ज्यादा ऑयल जाता है, तो वो आपको मॉनिटर करना है। वो आप बॉइल्ड वेजिटेबल से भी स्टार्ट कर सकते हो, दाल आप बॉइल्ड ले सकते हो। दाल का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसमें छौंक ना लगाएं कभी भी ऑयल का। जब आप उसे बॉइल करते हैं उसी में आप सारे जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो ऐड कर दो, अनियन, गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, व्हाटएवर यू वांट, और उसको फिर बॉयल होने के बाद आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो राइस के साथ। राइस से कभी वेट पुट ऑन नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है कि राइस से वेट पुट ऑन कराता है, बिकॉज इट इज रिच इन कार्ब्स। यस, इट इज रिच इन कार्ब्स, बट अगर आप उसे चपाती की जगह नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर पोर्शन में ले रहे हैं, तो फिर वो आपका वेट इंक्रीज नहीं कराएगा। और दोपहर में अगर आप राइस डेली भी खाएंगे तब भी आपका वेट लूज होगा, बहुत इजीली लूज होता है। राइस आर वेरी मच डाइजेस्टिबल इन नेचर। Okay. Are there any more ways of like increasing metabolism?
to increase your metabolism you have to take 10 to 15 glasses of water, because water ज़्यादा लेने से भी metabolism enhance होता है. वाटर जाने से ही आपकी बॉडी की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एंड केमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली मेटाबॉलिज्म. तो वो इनहैंस होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म इनहैंस होता है. फिजिकल एक्टिविटी विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, राइट. एंड take 3 meals, main meals and 2 small meals. Okay, don't take every time, हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नहीं खाना. आप मेन मील्स लीजिए कितने 3 आपके मेन मील्स होते हैं और 2 आपके नॉर्मल मील्स होते हैं जो आप मिड में लेते हो, राइट, एंड इवनिंग में जो आप लेते हो. तो वो आप बस इतना ही अपना मेंटेन करिए पैटर्न, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा वेट लूज होने में. और Okay. रात का खाना आप जो नाइट का जो डिनर है उसमें 1 चपाती हो. Okay. What diet should be consumed for a person who has high creatinine levels? क्योंकि उनको तो प्रोटीन खाना मना है. यस एग्जैक्टली, बिकॉज वो किडनी, अगर किसी किडनी प्रॉब्लम होती है, राइट, जब किसी की क्रेटिनिन लेवल तभी बढ़ता है तो किडनी प्रॉब्लम होती है. ओके, क्रेटिनिन लेवल तो इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा है तो फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है. किडनी बिल्कुल, क्रेटिनिन इज अ वेरी मच ये एक ऐसा इंडिकेटर है दैट कि आपकी किडनी ठीक से काम ही नहीं कर रही है. तो बहुत सारे लोग तो अगर किसी का क्रेटिनिन लेवल हाई है उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट उसको लो प्रोटीन डाइट हम देते हैं. किसी का क्रेटिनिन लेवल हाई होगा तो लो प्रोटीन डाइट देंगे, मीडियम प्रोटीन्स मतलब गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, एग्स देंगे, मिल्क देंगे और सीरियल पल्सेस कॉम्बिनेशन को मिक्स करेंगे. ज्यादा नहीं देंगे, कम देंगे, बट गुड क्वालिटी देंगे, जितनी पनीर जैसे. तो ये हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं हाई क्रेटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स को, क्योंकि डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर्स. पनीर में तो प्रोटीन होता है. पनीर तो हाई प्रोटीन होता है. Yeah, it's a high protein, but it's a good quality protein. I'm talking about कि you have to give good quality proteins to a kidney patients और जिनका creatinine level high होता है, because creatinine is a end product of protein. वो खुद ही प्रोटीन का end product है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है. That means your kidney is not doing functionally well. आपकी किडनी उसको बाहर निकाल रही है और अंदर नहीं भेज रही है. That means आपकी किडनी फंक्शनल नहीं है. तो इसके लिए साथ में आपका दूसरा ट्रीटमेंट भी चलेगा, क्योंकि किडनी ठीक करने वाला ट्रीटमेंट होता है. ओके, उसके साथ साथ फिर आपकी डाइट चलती है. ओके, थैंक यू. ओके, बबीता मैम आपका कुछ एक क्वेश्चन है. मैम ये गुड प्रोटीन ग्रुप आप कह रहे हैं ना, गुड पनीर जो ये हाई क्वालिटी का क्या मतलब है इसका? लेट्स सी, सीरियल, अगर आप, कुछ लोग सिर्फ सीरियल बेस्ड डाइट लेते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी है जिनकी सीरियल स्टेपल फूड होता है वो सीरियल बेस्ड डाइट लेते हैं, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो सकते हैं, बिकॉज सीरियल इज लैकिंग वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड. सीरियल्स के अंदर एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं पाई जाती, एंड इन पल्सेस आल्सो वन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज एब्सेंट. तो अगर आप उनको अलग अलग लेंगे तो आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू नीड टू टेक all the essential amino acids to make one protein. Okay, so if you combine both cereals and pulses then it will become a complete protein. तो वो गुड क्वालिटी प्रोटीन बन जाता है, जो कि एग में ऑलरेडी है, मिल्क में ऑलरेडी है, मीट और फिश में है, लेकिन पल्सेस और सीरियल्स में नहीं होता, इवन वेजिटेबल्स में भी नहीं है. तो आपको कंबाइन करना पड़ता है उनको, तभी वो कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना गुड क्वालिटी पनीर, तो इसका क्या मतलब है? Good quality protein I'm talking about. Okay. Paneer is a good quality protein. Okay. पनीर में गुड क्वालिटी हो गया ना. Okay. मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होंगे दे आर गुड क्वालिटी प्रोटीन. Okay. थैंक यू. उनका जो बायोलॉजिकल वैल्यू होता है वो अबव 80 होता है. Okay. बबीता मैम आपका क्या क्वेश्चन है? बबीता मैम. Okay, Dr. Garima, you can continue. Yeah. So now I will talk about some important minerals. The important minerals, first is calcium. Calcium is very important. Calcium के बारे में जो important facts हैं वो ये है कि calcium हमारी बॉडी में बोन्स में तभी जाता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. If we are not physically active, then calcium will be leached out from our urine. वो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा और ऐसे में किडनी स्टोन्स होने के बहुत चांसेस होते हैं. Right? So go for a
a bit physical activity if you want your calcium levels high in your body. तो कैल्शियम के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी वो आपकी बोन्स में जाएगा, अदरवाइज आपकी बोन्स धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएंगी। और एजिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका बोन हेल्थ। बोन हेल्थ आपका अगर अच्छा होगा तो आपकी एजिंग बहुत लेट आएगी। बोन हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तभी होती है इफ देयर विल बी विटामिन डी इन योर बॉडी, और विटामिन डी इज वेरी रेयरली प्रेजेंट इन योर फूड, वो आपके फूड में प्रेजेंट नहीं होता विटामिन डी। सो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम सप्लीमेंट्स, आपको सप्लीमेंट्स लेने ही होंगे। 100% ये है कि जो इंडिया है दैट इज 90% ऑफ द इंडियन पीपल दैट इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसमें आपको डॉक्टर की भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। आपके जो सैशे हैं और कैप्सूल्स जो आते हैं उसमें 61,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो वो सबके साथ सेम ही है। तो वो आप 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं पर वीक में एक ही आपको कैप्सूल या सैशे लेना होता है, और वो 3 मंथ्स तक आप लेंगे और उसके बाद उसको स्किप कर देंगे 3 मंथ्स के लिए और फिर आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक सिनेरियो होता है जो आपको लेना होता है विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए। बिकॉज विटामिन डी के साथ सिर्फ ये ही नहीं है कि वो आपकी बोन हेल्थ के लिए ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इज एंटी कार्सिनोजेन। विटामिन डी जिसकी बॉडी में कंप्लीट होता है वो इसको जल्दी से कैंसर नहीं हो सकता। और आजकल कैंसर होने का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, जो किसी को पता भी नहीं चलती कि इस वजह से ये हुआ होगा। बिकॉज जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज कैंसर इज बेसिकली व्हाट, इट इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर सेल्स। तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ तभी होती है जब सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं। तो विटामिन डी इज वन ऑफ दैम। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। और स्पेशली अपने किड्स के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी ध्यान रखिए कि उनको भी आप टाइमली सैशेज प्रोवाइड करते रहे मिल्क में मिला के, क्योंकि आजकल सभी बच्चे विटामिन डी डेफिशिएंट है। वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और उनको बहुत जरूरत होती है विटामिन डी की, लाइक अस। एंड सेकेंड इज आर विटामिन के। विटामिन के में के बारे में वी ऑल नो दैट कि विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअली इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बोन हेल्थ। हमारी बोन हेल्थ के लिए विटामिन के भी इम्पोर्टेंट है। और जो विटामिन के है वो फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। K2 जो हमारी बोन्स के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है, तो फर्मेंटेड फूड हमें ऑप्ट करने चाहिए जिससे हमें K2 मिलेगा, दैट इज गुड फॉर आवर बोन्स। देन other one is vitamin A vitamin, it is a fat soluble vitamin vitamin A। everybody knows कि हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन A, और वो कैरेट में पाया जाता है, ठीक है, टमाटो में पाया जाता है, सबको इतना पता है, स्पिनिच में बहुत है। बट उसका एक फैक्ट है कि इट हैज 2 फॉर्म्स। विटामिन ए की 2 फॉर्म्स होती है, एक एनिमल फॉर्म होती है, एक प्लांट फॉर्म होती है। जो प्लांट फॉर्म का विटामिन ए है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हमें इजीली नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, तो बहुत जल्दी हम विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड गो फॉर एनिमल विटामिन ए प्रोटीन। एनिमल विटामिन ए जो यूजुअली किसमें पाया जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, जो बटर है, घी है, कर्ड है, फुल क्रीम मिल्क या टोन मिल्क भी आप लेते हैं तो उसमें भी विटामिन ए यूजुअली प्रेजेंट होता है। और जो दूसरे विटामिन ए के सोर्सेज हैं जो प्लांट सोर्सेज हैं, जैसे जितने भी ऑयल्स हैं, ऑयल्स में विटामिन ए पाया जाता है। बट हम ऑयल्स को रॉ फॉर्म में कंज्यूम ही नहीं करते, हम ऑयल्स को हमेशा हीट करके कंज्यूम करते हैं। रॉ फॉर्म में हम सिर्फ ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं, यूजुअली रॉ फॉर्म, क्योंकि ऑलिव ऑयल सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज होता है, उसका टेस्ट भी बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं, तो अडेप्ट कर पाते हैं। तो सिर्फ ऑलिव ऑयल ही हम यूज करते हैं एज अ रॉ फॉर्म, तो उससे हमें विटामिन ए नहीं मिल पाता। विटामिन ए सिर्फ ऑलिव ऑयल से ही मिलेगा अगर कोई ले रहा है तो वी शुड गो फॉर एनिमल विटामिन ए, जो हमें घी से और बटर से मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट से। और ऑयल से जो विटामिन ए हमें मिल रहा है वो हमें नहीं मिल पाता है यूजुअली। ऑलिव ऑयल लेंगे तो मिलेगा, वो भी रॉ फॉर्म में, अदरवाइज नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगेन बहुत कॉमन है, तो उस पर हमें फोकस करना है, वी शुड फोकस ऑन विटामिन ए। देन अदर वन इज विटामिन ई। विटामिन ई इज एंटी एजिंग विटामिन, एंटी
कार्सिनोजेनिक विटामिन, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई की, बट ये हमारी जो डाइट है उसमें बहुत कम पाया जाता है और बहुत जल्दी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, विटामिन ई भी। तो हमें रॉ फॉर्म में जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर हम रॉ फॉर्म में लेते हैं तो इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज इसकी भी डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं विटामिन ई की। देन विटामिन बी, बी की पूरी सीरीज होती है बी विटामिन की, लाइक B1, B2, B3, तो ये अलग अलग सीरीज है जिसको हम कॉम्बिनेशन में बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स हम इनको बोलेंगे। दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं होते, दे विल नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, तो हमें डेली इसको यूज करना चाहिए, एवरीडे डाइट में हमारे लिए जरूरी है। बी, विटामिन बी हमारे डेली डाइट में होने चाहिए, और उनका बेस्ट सोर्स होता है सीरियल्स, नट्स, होल सीरियल्स एंड पल्सेस एंड नट्स में ये पाए जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। मैं बी की बात कर रही हूँ, तो आप होल सीरियल्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं वहां से आपको विटामिन बी मिल जाएंगे। एंड नट्स के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि नट्स को हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, उनको हम यूजुअली कुक नहीं करते, कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली पैलेटेबल होते हैं हमारे लिए जो नट्स हम यूज कर रहे हैं। तो नट्स से हमें सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिलते हैं जो कि हम अगर हीट कर देंगे तो नहीं मिलेंगे, तो गो फॉर नट्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के लिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन बी प्रेजेंट होता है, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आर वेरी मच गुड फॉर आवर हेल्थ। देन आई विल टॉक अबाउट विटामिन सी, that is immunity booster vitamin and again highly oxidizable, बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है विटामिन सी, और ये सिर्फ हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा है, और रॉ फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तभी मिलेगा, हीट करते ही ये एकदम ऑक्सीडाइज हो जाएगा विटामिन सी। और इसका जो बेस्ट सोर्स होता है दैट इज आंवला एंड गुआवा, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होते हैं ये, जो बहुत ज्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। Apart from that, there are so many sources like citrus fruits are there, they are rich in vitamin C, even banana has vitamin C, vitamin C banana के अंदर भी होता है, तो वो भी हम कंज्यूम करेंगे तो विटामिन सी हमें वहाँ से अवेलेबल होगा। So for to enhance our immunity we should go for the combination of diet, we should take balanced diet जिसमें सारे nutrients present होने चाहिए, because if there will be deficiency of a single nutrient तो उसी से आपकी deficiency symptoms दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। ओके, बी कॉम्प्लेक्स में हमारे विटामिन B12 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, और उसके अंदर क्या है, विटामिन B12 के अंदर ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट प्रोडक्ट में नहीं होता। तो जो वेजिटेरियन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कर्ड यूज करते हैं, उनको वो मिलेगा, अदरवाइज वी हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स ऑफ B12, क्योंकि B12 सिर्फ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर होगा एंड एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर होगा, और किसी भी फूड में B12 नहीं पाया जाता। ओके, so please focus on B12 also, because without B12 folic acid will also not be absorbed, so B12 होना बहुत जरूरी है डाइट में। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, कर्ड आप डेली लंच में आप कर्ड को इंक्लूड करें, कर्ड, बटर मिल्क, ये होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर लंच में, उससे हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे B12 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो हाउ कैन वी फुलफिल द डिमांड ऑफ विटामिन D3 एंड विटामिन B12? लाइक B3 तो हमें मिल्क से मिल जाएगा, बिकॉज नियासिन इज B3, जो कि जिसमें कि एक अमाइनो एसिड होती है मिल्क के अंदर, ट्रिप्टोफैन, वो B3 में कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में जाके। मैम इट्स D3 या B3, नायासिन, नायासिन इज B3, तो हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो इजीली B3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी डेफिशिएंसी से आप बच सकते हो इफ यू आर टेकिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। बट जो विटामिन B12 है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में ही है, कर्ड, योगर्ट और जो भी दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स में, एग में है, और किसी फूड में B12 नहीं होता। तो वेजिटेरियंस के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, तो उनको फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और ज्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ओनली 1 माइक्रोग्राम अ डे, सिर्फ आपको 1 माइक्रोग्राम अ डे चाहिए B12, तो उतनी आपको उससे मिल जाएगी फॉर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट? एनीबॉडी एल्स? बबीता मैम का क्वेश्चन है, कैन वी टेक कर्ड इन विंटर्स? Yes, of course.
कैन टेक कर्ड इन विंटर्स। कर्ड के साथ कोई इशू नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम जिनका थोड़ा थ्रॉट इन्फेक्शन होता है या फिर थ्रॉट इशू होता है, सेंसिटिव थ्रॉट होता है, उनके लिए थोड़ा सा बोलते हैं कि कर्ड आप अवॉइड करें, वो भी रात को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और कर्ड अगर खट्टा नहीं है तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। अगर आप घर में ही कर्ड बना रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एन इशू इन विंटर्स ऑल्सो। ओके, so you can take कर्ड इन विंटर्स ऑल्सो। कर्ड के साथ तो है कि आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए कर्ड। डेली यू शुड टेक कर्ड विद योर लंच, आपके लंच में कर्ड होना चाहिए। गुड प्रोबायोटिक और व्हाट? इट्स अ गुड प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक नॉट प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोबायोटिक्स, क्योंकि प्रीबायोटिक्स जो होते हैं दे आर द फूड ऑफ प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया का फूड होते हैं वो, तो वो हमें मिलते हैं फाइबर से, फाइबर्स होते हैं बेसिकली प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स, तो वो हमें फ्रूट से मिल जाते हैं फाइबर्स, फ्रूट इवन सीरियल से भी हमें फाइबर बहुत अच्छा मिलता है। तो प्रीबायोटिक फूड तो हमारी डाइट में जा ही रहा है, हमें प्रोबायोटिक का स्पेशल ध्यान रखना है। लाइक कर्ड, योगर्ट, याकुल्ट इज ऑल्सो अ प्रोबायोटिक, उसमें लैक्टोबैसिलस सीरियस बैक्टीरिया होता है जो बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, वो इम्यूनिटी एनहांस करता है। बट उसके लिए आपको याकुल्ट डेली लेना होगा, आप उसको कुछ टाइम लेके छोड़ देंगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं, राइट? सो कर्ड इज द बेस्ट प्रोबायोटिक फॉर आवर डेली लाइफ, इवन फॉर किड्स आल्सो, राइट? इवन फॉर किड्स। किड्स को तो हमें देना ही चाहिए कर्ड, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स वहीं से आ रहे हैं, फर्मेंटेशन से। कर्ड की फर्मेंटेशन से हमें विटामिन के मिल रहा है, विटामिन B12 मिल रहा है एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो ये जो विटामिन है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनते हैं, वो हमें मिलेंगे। कर्ड एज वेल एज बटर मिल्क इक्वली इम्पोर्टेंट, इवन बटर इज ऑल्सो फर्मेंटेड प्रोडक्ट। तभी आजकल बहुत ज्यादा बटर के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि बटर लो, क्योंकि वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो गया है ना बटर, तो उसमें आपके जो फर्मेंटेशन के जितने भी क्वालिटीज हैं वो ऐड ऑन हो जाती है। घी से अच्छा अभी बटर को बोला जा रहा है, बटर इज द बेस्ट थिंग नाउअडेज, क्योंकि जो घी वाली क्वालिटीज हैं वो भी उसके अंदर हैं और जो फर्मेंटेशन वाली क्वालिटीज है वो भी बटर के अंदर है, एंड इट हैज सम मॉइस्चर कंटेंट ऑल्सो, तो उसके अंदर थोड़ा सा कैलोरीज भी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, कैलोरी थोड़ी कम हो जाएगी ना मॉइस्चर कंटेंट ऐड ऑन होने से। तो गो फॉर बटर। आप बोल सकते हैं बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है बट फ्रेश बटर। एंड उमा मैम का एक क्वेश्चन है, अगर कोई नेफ्रेटिक सिंड्रोम से सिंड्रोम है किसी को, तो उनके लिए प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो प्रोटीन की फॉर्म में क्या कंज्यूम कर सकते हैं? एक्चुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है बहुत रेयरली बड़ों में होती है, और ये ना एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम इज नॉट अ डिजीज। सिंड्रोम में क्या होता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। इसमें क्या होता है, जो किडनी है उसकी प्रोटीन को बाहर निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो वो प्रोटीन को इतना बाहर निकाल देगी कि जो जिसको भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है वो बहुत वीक हो जाएगा, उसकी बोन्स, उसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी। तो इसमें तो क्या होता है कि हम उनको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। ओनली किडनी डिजीज में सिर्फ एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसी डिजीज होती है जिसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, राइट? सो उसमें प्रोटीन कभी रिड्यूस नहीं करते। आपको किसने बोला प्रोटीन कम करने के लिए? हाँ जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन कम नहीं किया जाता, बिकॉज उसमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन बॉडी से लीज आउट हो जाता है, किडनी सारा प्रोटीन बाहर निकाल देती है, तो उसमें हमें डाइट प्रॉपर देनी होती है उनको। It is Uma here, ma'am. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Hello. हाँ जी, yes. It is Uma here, ma'am. Okay, so what is your age? I'm 35. 35, and you are having nephrotic syndrome. Yes, ma'am. नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक स्टेज होती है जो आगे चल के आपकी किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आपकी ये ज्यादा है इसलिए मैं बता रही हूँ, बच्चों को कभी किडनी फेलियर का चांसेस नहीं होते, आगे चल के होने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको अपनी किडनी को ठीक करने के लिए यू शुड गो फॉर सम मेडिसिन। वो मेडिसिन क्या करती है, डायरेटिक्स होती है, डायरेटिक होती है मेडिसिन, और वो आपकी बॉडी किडनी को ठीक करने की कोशिश करती है। ऐसी मेडिसिन आपकी चल रही होंगी, साथ में आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक प्रोटीन डाइट, गुड क्वालिटी प्रोटीन यू हैव टू टेक, जिसका एंड प्रोडक्ट यूरिया होता है। प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन के। तो ऐसे में क्या है कि आपको ऐसा प्रोटीन लेना होगा जिसका एंड प्रोडक्ट कम बने,
मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया और यूरिक एसिड वो कम बनता है, तो यू शुड गो फॉर मिल्क प्रोटीन, फिश और एग प्रोटीन, ये आप ये वाली प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करिए, राइट? तो ये आपके लिए हेल्दी होगी। ओके, सो उसके अलावा यू हैव टू टेक वन डाइट चार्ट, यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर डाइट, राइट? अच्छी डाइट की आपको जरूरत है, तभी आप अपने डिजीज को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, टोटली रिवर्सिबल, ठीक हो जाता है। किडनी फेलियर रिवर्सिबल होते हैं। यस, एनीबॉडी एल्स, किसी को कुछ भी क्वेरी है? एक yes Noreen ma'am, you can continue. हेलो गरिमा मैम, ये आई एम 39 years old और मेरा ये है प्रॉब्लम कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स अर्ली मेनोपॉज। 39 is very early for menopause. हाँ, बिकॉज क्या है कि मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ अपनी, क्योंकि मेरा 2 बार IVF हो चुका है, जो कि टोटली फेल हो चुका था, और 6 years के बाद मेरी फिर मतलब नॉर्मली मैंने कंसीव किया नौरीन, जो कि आपकी बेटी के साथ भी खेलती है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि अब लास्ट ईयर से मुझे काफी हेवी ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, तो मेरा फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पता चला कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स अर्ली मेनोपॉज। तो अभी मेरा ऐसा है, सिम्टम्स तो वही सारे हैं, लेकिन वही है कि एंजाइटी वगैरह भी हो जाती है, कई बारी मूड स्विंग्स होते हैं। तो मुझे ये अभी आपका चल रहा है पीरियड, अभी फिनिश तो नहीं हुआ? हाँ जी, फिनिश नहीं तो जी, नहीं अभी नहीं हुआ है, नहीं। So तो मैं ये हाँ, तो अभी आपके पास टाइम है। आई नो कि देयर मस्ट बी सो मेनी रीजंस, लाइक IVF आपके हुए हैं, बहुत हैवी मेडिसिन पे आप रहे होंगे, जिससे हैवी हार्मोन्स आपने इनफैक्ट आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए होंगे, जिसकी वजह से अभी हुआ ये है कि आपकी बॉडी का जो मेन हार्मोन है दैट इज ईस्ट्रोजन, वो बनना कम हो गया है। कम होने की वजह से अब आपकी जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो मेरा ये चली गई है। हाँ जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी इस टाइम के मुझे मतलब डाइट पे अपना कैसा ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मतलब और एक्टिविटीज करनी चाहिए, मतलब अभी जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने मेनोपॉज को अभी आगे बढ़ा सकते, खींच सकें। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल खींच सकते हो, क्योंकि अभी आपका सिर्फ प्रोसेस में है, इट इज हाँ जी, हैजंट बी फिनिश्ड, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी आप इसको फिजिकल एक्टिविटी रिजीम के थ्रू, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज द थिंग कि इससे आपके नेचुरल हार्मोन बनने प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आप एक बार मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो कि आप मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेडिकली अभी आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो। अच्छा, नहीं बीच में मैंने वो काफी एंजाइटी की मेडिसिन ले ली थी, जिसका मेरा प्रोलैक्टिन भी काफी हाई हो गया था। तो फिर तो फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने अभी फिर क्योंकि मुझे एंजाइटी इतनी होती थी, मुझे रात में काफी टाइम से नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से बाकी मेरे वो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती थी, काफी कुछ मतलब हो जाती थी प्रॉब्लम्स, मैं बहुत वीक फील करती थी। तो इसके उन्होंने फिर एंजाइटी की सारी दवाइयां, उन्होंने मेडिसिन बंद की कि अभी आप कुछ मत लो, इसकी वजह से भी हो सकता है प्रोलैक्टिन हाई हो गया होगा आपका। तो अभी मेरा प्रोलैक्टिन लेवल पे है, मैं कुछ अभी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बट यही है कि मुझे एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है ऐसे टाइम में। तो मैं इसमें मूड स्विंग्स ये बहुत नॉर्मल है। जो हमारा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो बहुत हद तक हमारे जो इमोशनल लेवल्स हैं उनको कंट्रोल रखता है। जैसे ही वो हार्मोन रिड्यूस होगा आपकी बॉडी से, तो इट इज कनेक्टेड टू अदर हार्मोन्स आल्सो, और आपकी बॉडी में एंजाइटी, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम में मैं डाइट वगैरह कैसी लूं, मतलब किस तरह की डाइट मुझे ज्यादा लेनी हाईली चाहिए? न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी होगी, और डाइट के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी का रिजीम अगर आप ऐड ऑन करती हैं तो उसी से ही आपका ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नेचुरली बनना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी ना बहुत वर्सेटाइल होती है, राइट? हमारी बॉडी जिस हिसाब से हम चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही चलेगी। अभी आपका हार्मोन भले कम हो गया, लेकिन अभी तो 15 इयर्स, अभी आपका हार्मोन 15 इयर्स के बाद कम होना चाहिए था, तो आपकी बॉडी उसको क्लब अप इजीली कर लेगी अगर आपने थोड़ा भी अपना मैं पर्सनली किया ना। हाँ जी,
मैं पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट कर सकती हाँ हूँ? बिल्कुल कांटेक्ट कर लेना, आपका हार्मोन अच्छा। बनना स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, नेचुरल वेज हैं, और आप डाइट भी चेंज, डाइट ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रिशनल डाइट करनी होगी, बिकॉज इट इज स्टीरॉयड हार्मोन। एस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन होता है। ऐसा भी हो सकता है विटामिन डी लेवल आपका, आपने कभी कराया है चेक विटामिन डी हाँ लेवल? जी, विटामिन डी तो मेरा काफी लो हो गया था, मैंने शॉट्स भी लिए हैं उसके। तो ये बहुत होता है क्योंकि विटामिन डी स्टीरॉयड विटामिन है, और काफी लोगों का वो कम हो जाता है तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लिंक्ड होते हैं ये सारे आपके हार्मोन्स, और कोलेस्ट्रॉल इज अगेन लिंक्ड। आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नॉर्मल है सभी। ठीक है, वो नॉर्मल है, बिकॉज अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें ध्यान देना होता है मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है मैम, ठीक आप है। मुझसे पर्सनली मिलना, मैं आपको बताऊंगी फिर कैसे आपको ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। Okay, ma'am, we'll quickly take 2 more questions, then we'll end this session. कृष्णा मैम का क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं, एंड कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? यूरिक एसिड इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? हमारी बॉडी में हमारी हर एक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। हमारी सेल्स न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बनी है। डीएनए आरएनए का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड तो बनना हमारी बॉडी में बहुत नॉर्मल है, वो बनता ही है। बट आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो किडनी है यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल रही है, और वो ब्लड में ही आपका इंक्रीज हो गया, राइट? तो इसकी वजह से आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है। That means your body metabolism is totally disturbed of DNA RNA का जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसमें आपको लो प्यूरिन डाइट लेनी होती है। लो प्यूरिन डाइट ये डाइट होती है जिसमें कि आप ग्लैंडुलर मीट, नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं लेंगे। यू शुड नॉट गो फॉर दैट। नॉनवेज प्रोडक्ट आप नहीं कंज्यूम करेंगे। पल्सेस आपको कंज्यूम नहीं करनी होती क्योंकि वो यूरिक एसिड में रिच होती है। नॉनवेज फूड यूरिक एसिड में रिच होते हैं। एग आप कंज्यूम कर सकते हो, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो आप कंज्यूम कर सकते हो, पर एग का जो येलो पार्ट होता है वो आपको कंज्यूम नहीं करना, राइट? तो यूरिक एसिड के लिए आपको ये डाइट फॉलो करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर जाएगा, किडनी उसको लीच आउट करेगी, और आपकी जो ब्लड में है यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आपको भी एक प्रॉपर डाइट की जरूरत है जिसमें कि हाई फाइबर डाइट यू नीड टू टेक, एंड गो फॉर अगेन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आप जितना करेंगे तो किडनी की जो टेंडेंसी है वो ठीक होती है, वो यूरिक एसिड को बाहर निकालेगी। ओके, और आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा यूरिक एसिड नहीं बनाएगी, थोड़ा जितना जरूरी होगा उतना ही वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, यूरिक एसिड के लिए आप प्लीज नॉनवेज प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, ओनली मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, पल्सेस भी आपको अवॉइड करनी होंगी। स्पिनच आपको अवॉइड करना होता है। पीज जो मटर होती है वो भी आपको अवॉइड करनी होगी यूरिक एसिड के लिए। ओके ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। ये प्याली मैम का क्वेश्चन है, पीसीओडी के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए? पीसीओएस में आपका अगेन एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका एग प्रॉपर्ली, आपके जो एग्स हैं वो सिस्ट की फॉर्म ले लेते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट आपकी ओवरीज में बन जाती हैं। इसके लिए आपका हार्मोन्स, दैट इज अगेन अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो आपको एक तो डाइट में जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन हार्मोन्स को बनाते हैं वो इंक्लूड करने हैं। दूसरा, आप अगेन पीसीओएस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी उसमें ऐड ऑन करना होगा, और उसमें ना पीसीओएस में हाई वर्कआउट ऐड ऑन करना होता है। मींस आपको जॉगिंग, रनिंग, ऐसी एक्टिविटीज अपनी उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है, तब जाके आपकी ये ऑटोमेटिकली आपका जो साइकिल है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो और डाइट तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। जो भी आप हाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट, एंड लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, ये डाइट आपको लेनी होगी। एंड गुड फैट्स, इंक्लूड गुड फैट्स इन योर डाइट। ओके, सो गो फॉर दैट डाइट rich in fruits and vegetables. Lots of fruits and vegetables you have to take. Boiled food, go for bland diet. मसाला मतलब वो थोड़ा सा आपको स्पाइसेस कम करने होंगे डाइट में, बिकॉज में यही होता है। बिकॉज की डाइट में यू हैव टू बी फोकस ऑन अ न्यूट्रिशनल डेंस डाइट जिसमें आपके विटामिन डी शुड बी देयर, ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रेजेंट। फिश, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन?
She must be non-vegetarian because she is a Bengali. So ओके, I'm hoping. तो हाँ, इसमें ये होता है यू हैव टू अवॉइड नॉन वेज, बिकॉज में पीसीओएस में नॉन वेज फूड को कम करने के लिए बोला जाता है. फिश यू कैन टेक इन अ मॉडरेट अमाउंट. तो वो जो आपका प्रोटीन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज गो फॉर वेजिटेरियन डाइट एंड हाई वर्कआउट, राइट. सो इट्स अ बेस्ट थिंग, बिकॉज को आप बहुत इजीली ठीक कर सकते हो, बट यू शुड नॉट गो फॉर मेडिसिन अवॉइड करनी है आपको. अगर आप मेडिसिन पे जाते हो तो आपका नेचुरल हार्मोन बिल्कुल बनना बंद हो जाएगा, और वो फिर बनेगा ही नहीं. फिर आपको लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, तो तभी आपका साइकिल ठीक रहेगा. बिकॉज भी बहुत तरह का होता है कि कौन से स्टेज का है वो पता होना जरूरी है, कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो वो पता होना चाहिए. कि अगर नहीं ले रहे हो तो बहुत इजीली ठीक कर सकते हो आप, बिकॉज. Okay, thank you so much, ma'am. It was a wonderful session and it was a very informative session also. बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं हमें कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हें. बस सेशन के एंड में अगर आप बच्चों की इम्यूनिटी के लिए कोई टिप देना चाहेंगी, बिकॉज बहुत सारी मॉम्स हैं जो अपने बच्चों के साथ सेशन देख रही हैं. अगर कोई आप एक टिप देना चाहेंगी जिनसे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है. सो बच्चों की डाइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स. बनाना इज अ प्रीबायोटिक. प्रोबायोटिक मैंने आपको बताया है कि आपको कर्ड जरूर देनी है किड्स को, और फ्रूट्स, एवरीडे फ्रूट्स विल बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट दे मस्ट बी सम सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन. सीरियल आप जो भी उनको पराठा जो भी आप उनका बनाते हो उसमें आप कुछ भी पल्स ऐड कर दो, सत्तू, बेसन, कुछ भी आप उसे कंबाइन कर दो, जिससे क्योंकि वो एक ही खाएंगे, वो बार बार नहीं खाएंगे. उसी के अंदर आपको डेंस बनाना होगा, फिलिंग देनी होगी. लाइक आप पनीर की फिलिंग दे सकते हो. एक पराठे में ही आपको उसको बहुत न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट बनाना होगा. वेजिटेबल्स आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो किड्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि पराठे के को आपको न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि वेजिटेबल्स वो अलग से कम खाते हैं और वो हैंडी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहते हैं किड्स. ठीक है, तो वो आपको यूज करना चाहिए. और मिल्क, जो आप मिल्क उनको देते हैं उसमें आप विटामिन डी के सैशे एवरी वीक, एक सैशे, हाफ सैशे, किड्स के लिए हाफ सैशे होता है एवरी वीक, और उसको आप कंटिन्यू करें 1 मंथ के लिए. फिर आप 1 मंथ का गैप कर सकते हो, फिर आप स्टार्ट कर दें. उससे उनका विटामिन डी लेवल एनहेंस होगा. और किड्स में विटामिन डी लेवल नॉर्मल होते हैं तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत एनहेंस हो जाती है. ठीक है, और मेन यही चीजें आपको ध्यान रखनी है किड्स के लिए, कि आपको प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फ्रूट्स उसमें ऐड होने चाहिए, एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन वुड बी देयर होना चाहिए. और ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप उन्हें मंच कराएं, डोंट गो फॉर दैट. फिर वो प्रॉपर फूड मील नहीं लेते हैं किड्स. आप उनको एक प्रॉपर मील लेने की हैबिट डालें. आप उनको मंच मत कराइए. इवनिंग स्नैक दीजिए. फॉक्स नट्स आप उनको दीजिए. फॉक्स नट्स आर रिच इन कैल्शियम. फॉक्स नट्स आप उनको डेली एज अ स्नैक दे सकते हो. तो थोड़ा रोस्ट करके फॉक्स नट्स को, मखाने जिनको हम बोलते हैं, दे आर वेरी मच रिच इन कैल्शियम. वो किड्स के लिए बहुत हेल्दी है, तो आप वो उनको देंगे तो उससे भी इम्यूनिटी बहुत है एनहांस होगी. Thank you so much, ma'am, and thank you so much everyone. थैंक यू सो मच. और मैम आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगी अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो? श्योर, आई कैन गिव माय. मैम अपनी चैट बॉक्स में लिख दीजिए या आप मुझे बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ. आई विल टेल यू माय नंबर. यस. 88 88 60 60 65 65 4010. 4010. Yeah. ओके, मैंने चैट बॉक्स में डॉक्टर गरिमा का नंबर लिख दिया है. किसी को नोट करना है तो वो कर सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि बच्चों को जैसे मिल्क, एग और बनाना तीनों एक साथ दे सकते हैं क्या? तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन, आई डोंट थिंक सो. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो प्रोटीन वेरी कर जाएगी. एग इज डिफरेंट देन मिल्क, एंड बनाना इज अगेन, बनाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता बनाना में. और जो मिल्क और एग है, दे आर रिच इन प्रोटीन. सो कॉम्बिनेशन प्लीज अवॉइड करें आप. कभी कभी जैसे अभी हमें देना पड़ता है कि आप कोई और फूड में भी गैप है, या कहीं आप जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट डाइजेस्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अवॉइड करें.
उससे प्रॉब्लम होगी उनके डाइजेशन में, साथ में नहीं दीजिए। ओके Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. थैंक यू। Bye, ma'am. Bye.